Hello engineers, welcome to this Astonic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम कम्प्लीटली बात करेंगे ब्रिक बैट कोबा क्या होता है, ब्रिक बैट कोबा को एग्जीक्यूट करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अलॉन्ग विद दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. So without wasting any more time, let's get started. So इंजीनियर्स ब्रिक बैट कोबा एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले जान लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है जिसमें हम सारे मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं. फर्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ वाटर लीकेज, सेकंड है व्हाट इज ब्रिक बैट कोबा एंड व्हाई डू बिल्डिंग्स नीड इट, step by step procedure of brick bat koba waterproofing. Fourth one we have advantages of brick bat koba, and last we have disadvantages of brick bat koba. Let's move forward. So engineers, हमारा first table of content है effect of water leakage. Let me read out for you. Cracks may form on concrete surface. The leakage water reacts with the steel reinforcement and corrodes the concrete. Obviously बात है, जब भी हमारा reinforcement वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन का डेवलपमेंट होना फॉर श्योर है. द हाउस होल्ड थिंग्स एंड वुडन मटेरियल मे कॉज फंगस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बिल्डिंग. और वुडन मटेरियल जो भी हैं, जब भी वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं उनमें फंगस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. हाई मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर्ड. So waterproofing is the only solution to avoid water leakage in the building. The brick bat koba lime mortar mix has been widely used as waterproofing treatment to prevent water penetration on the slab. So water leakage को अगर आपको prevent करना है तो brick bat koba is the only solution which is economical and very easy to execute. Let's move forward. Engineers, हमारा second table of content है, that is what is brick bat koba and why do buildings need it. Let me read out. Nowadays most of the building roofs are constructed by a reinforced concrete slab, but there is a possibility of water leakage inside the building which leads cracks in the future. Now we have different nomenclature of cutting of a brick. First है split. जब brick को उसके longitudinal direction में half कर दिया जाता है, that is known as split. फिर है queen closure. जब brick को longitudinal direction के across उसे cut कर दिया जाता है तो वो है queen closure. Quarter closure, जब आपका 1/4 पार्ट ही brick का remaining है. 3/4 closure, तब 3/4 पार्ट brick का remaining है. फिर है हाफ और बैट, जब ब्रिक को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड एट लास्ट वी हैव किंग क्लोजर, जब ब्रिक को किसी एंगल पे, जनरली 45 एंगल पे कट किया जाता है. द ब्रिक बैट कोबा मटेरियल्स आर लेड ऑन द फ्लैट रूफ सरफेस एट द थिकनेस ऑफ 75 mm टू 150 mm. ये थिकनेस है ब्रिक बैट कोबा के एग्जीक्यूशन की, 75 टू 150 mm, विद द सीमेंट मोर्टार मिक्स ऑफ वाटरप्रूफिंग chemical at the proper slope to drain out the water in the rainy season, also to prevent water penetration. The brick bat koba waterproofing treatment gives the comfort of thermal insulation inside the building. एक बार brick bat koba हो जाता है तो हमारे पास दो एडवांटेजेस हो जाते हैं. फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स द वाटरप्रूफिंग, वाटर लीकेज को रोकेगा, और सेकंड है थर्मल इंसुलेशन का भी वर्क करेगा. Let's move forward. Now engineer, the next subhead we have step by step procedure of brick bat koba waterproofing. इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं जिसकी हेल्प से हम ब्रिक बैट कोबा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एट द बॉटम यू कैन सी वी हैव आरसीसी टेरेस स्लैब. उसके ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशन होता है फर्स्ट सीमेंट स्लरी कोट का. उसके बाद ब्रिक बैट की प्लेसिंग की जाती है. ब्रिक बैट की प्लेसिंग होने के बाद सीमेंट स्लरी का एक और कोट उस पर स्प्रे किया जाता है. और आपने जो भी ब्रिक बैट की प्लेसिंग की है उनमें जो गैप है वो 15 टू 20 mm रखना है. उसके बाद सीमेंट मोटर 1:4 से उन गैप्स को फिल करना है. एट लास्ट फाइनल फिनिशिंग कोट देना है जो कि अगेन सीमेंट मोटर होगा हैविंग द रेशियो 1:4. और फाइनल कोट होने के साथ साथ उसमें थोड़ी सी स्लोप भी दे दी जाती है ताकि ड्रेन आउट हो सके सीधा ही वाटर, और उससे आप ड्रेन पाइप के अकॉर्डिंग सीधा ही डिस्चार्ज कर सके. सो दिस इज द इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिक बैट कोबा. नाउ लेट्स रीड आउट द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन. द आरसीसी रूफ सरफेस शुड बी क्लीन एंड शुड नॉट हैव एनी मेजर एंडुलेशन. द रूफ सरफेस मस्ट बी स्क्रब्ड बाय वायर ब्रश एंड क्लीन. If any cracks found on the surface must be rectified immediately. Now apply the concentrated cement slurry on the roof surface and the parapet wall up to 300 mm height at the rate 2.5 kg to 2.75 kg per square meter. आपको parapet wall पे भी up to 300 mm की हाइट तक सीमेंट स्लरी का पेस्ट करना है ताकि वॉल से कोई लीकेज होना स्टार्ट नहीं हो जाए. After that
The 1:4 cement mortar mix, which is rough mortar, will be applied on the top of the cement slurry at 25 mm thickness. 1:4 cement mortar का जो रेशियो उसकी thickness 25 mm है. Now brick bat will be laid either 75 or 150 mm thick with 10 to 15 mm gaps for filling the mortar. जो आपने brick bat बिछाए हैं उनका गैप जनरली 15 mm एवरेज लेके चलते हैं. आप 10 to 20 mm के बीच में कुछ भी ले सकते हैं. The brick bat must be soaked well before placing on the surface. After putting the brick bat, it should be cured for 24 hours. After that, the gap should be filled with the cement mortar at the ratio 1:4. वापस आपको उस गैप को किससे फिल करना है? 1:4 cement mortar ratio से. Now the waterproofing chemical compound is mixed with the cement mortar, which is not more than 3 to 5% per cement bag. पर सीमेंट बैग का वेट है 50 kg, उसका 3 to 5% ही आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल उसमें मिलाना है. Now apply the mix at 20 mm thickness as a final layer over the brick bat. फाइनल लेयर की थिकनेस कितनी है? 20 mm. उसी में आपको क्या करना है? वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलाना है. The parapet wall also should be plastered by the cement mortar in 20 mm thickness with a smooth finish. Along with the brick bat, आपको parapet wall पर भी प्लास्टर करना है. Finally, the brick bat waterproof should be cured at a minimum 7 to 10 days by any type of curing method. आप कोई भी curing method ले सकते हैं, गनी बैग्स लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, पॉन्डिंग कर सकते हैं. एटलीस्ट 7 to 10 डेज तक आपको उसको कंटिन्यू क्योरिंग करना ही करना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब इंजीनियर्स जानते हैं कि ब्रिक बैट कोबा के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट लेट्स रीड आउट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक बैट कोबा. इट इज एन इकोनॉमिकल वाटरप्रूफिंग मेथड. The brick bat waterproofing treatment will be complete in a short period. High skilled manpower not required. And last we have imaginary brick wastage can be utilized for the waterproofing. Now let's read out the disadvantages of brick bat koba. The main disadvantage of brick bat koba is the dead load. It increases the dead load of the structure when using bricks. Obviously बात है, आपने क्या है, एक एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड की है रूफ को, जो कि डेड लोड को इवेंचुअली इंक्रीज ही करेगा. इमीडिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इफ एनी क्रैक्स हैव बीन फाउंड ऑन द रूफ सरफेस, एल्स इट मे कॉज ट्रबल इन द फ्यूचर विच मे नॉट बी सॉल्व क्विकली. जब भी आप ब्रिक बैट कोबा को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप इमीडिएटली फाइंड आउट कर लीजिए कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लीकेज 1 से 2 दिन बाद अगर क्योरिंग करके फाइंड आउट करेंगे तब ब्रिक बैट कोबा ड्राई हो चुका होगा. फिर उसे ब्रेक करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू रेक्टिफाई एंड एलिमिनेट द लीकेज. सो इंजीनियर्स, ये सिंपल सा प्रोसीजर है अबाउट ब्रिक बैट कोबा. एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में जनरल नॉलेज होना ही चाहिए. सो इंजीनियर्स, होपफुली आज के इस वीडियो मॉड्यूल में आपने जाना होगा कि ब्रिक बैट कोबा को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं. सीमेंट मोटार रेशियो कितना होना चाहिए, ब्रिक बैट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्योरिंग कितने पीरियड तक करनी चाहिए और लीकेज को कैसे रेक्टिफाई करेंगे. होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द प्रोसीजर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर knowledgeable and educational content like this. If you like this video, then please like and share. Till then, be safe, be healthy. जय हिंद, जय भारत.